ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی کھڑکی کے پردوں کے کناروں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ انوشے بے ترتیب بکھرے ہوئے بستر پر ایک عجیب سی معصومیت لیے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے کے نیچے دبا ہوا تھا اور دوسرا بستر سے نیچے لٹک رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے، چہرے پر نیند کی ایک مٹیالی سی چھاپ، ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ، ارد گرد کتابیں، کپڑے، موبائل فون، کان کی بالیاں اور خالی چاکلیٹ کے ریپرز بکھرے پڑے تھے۔ کمرے کا حال ایسا تھا جیسے کسی طوفان نے ہر چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا ہو۔ وہ ایسی ہی تھی، زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے والی، خاندان بھر کی لاڈلی مگر اپنی ماں کی شیطان بیٹی۔ تبھی کمرے کا دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور رضیہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ان کی لاڈو پری گہری نیند سو رہی تھی۔ انہیں بے حد افسوس ہوا تھا۔ خاندان کی لڑکیاں صبح سویرے جاگ جاتی تھیں، صرف انہی کی بیٹی تھی جو کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ ہاتھ میں جھاڑو، چہرے پر خفگی کی واضح جھلک۔ انہوں نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، پھر آہ بھری۔ اللہ، یہ کمرہ ہے یا کوئی میدان جنگ؟ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے جھاڑو ایک طرف رکھی اور آستینیں چڑھائیں۔ وہ خاصی نفاست پسند تھی اور اس کے برعکس انوشے نہایت گندگی پسند۔ آہستہ آہستہ سامان سمیٹنے لگی، کتابیں ایک طرف رکھیں، چاکلیٹ کے ریپرز کچرے کے ڈبے میں ڈالے، کپڑے طے کرنے لگی، ساتھ ساتھ بولتی بھی جا رہی تھی، جیسے الفاظ سے انوشے کی نیند توڑنے کی ٹھانی ہو۔ کتنی بری بات ہے، لڑکی ہو لڑکی، بھائیوں کی بہن ہو، ذرا سی تمیز بھی نہیں۔ صبح سویرے بیٹیاں جاگی ہوئی اچھی لگتی ہیں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہیں، اماں کی مدد کرتی ہیں، اور ایک تم ہو، اللہ معاف کرے، گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو 12 بجے تک۔ انوشے نے کروٹ بدلی، تکیا سر پر رکھا اور منمنائی، امی پلیز، اللہ کا واسطہ چپ کر جائیں نا، سونے دیں، رات بھی آپ کا لیکچر سنا ہے، اب بس کر دیں۔ وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ امی نے جھٹ سے تکیا کھینچ لیا۔ چپ کر جاؤں؟ میں چپ کر جاؤں؟ ساری دنیا جاگ چکی، سب اپنے اپنے دفتر چلے گئے اور تم ہو کہ ابھی تک سوئی ہوئی ہو۔ انوشے نے آنکھیں نیم وا کرتے کراتے ہوئے کہا، امی، ہفتہ ہے آج، چھٹی ہے میری، اور ویسے بھی نیند پوری کرنا بھی تو سنت ہے نا۔ بڑی آئیں سنت کی پیروی کرنے والی، کبھی نماز کی سنتیں بھی اتنی پابندی سے ادا کرو جتنی نیند کی کر رہی ہو۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ میں موجود جھاڑو ہی اس پر برسا دے، مگر بے بس تھی۔ مگر ایک ہاتھ بھی اسے لگا دیتی تو پوری حویلی ان کے سر پر کھڑی ہو جاتی۔ انوشے نے لحاف اپنے اوپر کھینچ لیا اور بڑبڑائی، اوف امی، بس بھی کرے نا، نیند ٹوٹ رہی ہے میری۔ رضیہ بیگم نے اس کی ٹانگ کو ہلکے سے جھنجھوڑا، ٹوٹنی چاہیے نیند، ارے بیٹا صبح کا وقت برکت والا ہوتا ہے، جتنی دیر تک تم سوتی رہو گی نا ویسے ہی قسمت بھی سوتی رہے گی۔ اٹھو اٹھو، ہٹو ذرا، یہ رضائی بھی دھونے دینی ہے، پورے مہینے کی بدبو بس رہی ہے اس میں، بالکل تمہیں صفائی کا خیال نہیں۔ انوشے نے لحاف سے جھانکتے ہوئے ناک چڑھایا، امی کتنا ظلم کرتی ہیں آپ مجھ پر، تھوڑا اور سونے دیتی۔ ظلم تو تم نے اس کمرے پر کیا ہے، یہ کیا قیامت ڈھائی ہے، کپڑے ادھر ادھر، کتابیں، چاکلیٹ کے ریپرز ایسے پڑے ہیں جیسے کوئی چوہے پارٹی کر کے گئے ہوں۔ انوشے ہنسی دبانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ دوسری طرف موڑ گئی۔ رضیہ بیگم نے ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر تنبیہ کی، آج ہی تم سے یہ کمرہ صاف کراؤں گی، کوئی ملازمہ نہیں ہو تمہاری، ذرا دیکھو تو صحیح، خود شرم آنی چاہیے تمہیں۔ انوشے نے نیم خوابی میں مسکرا کر بولی، امی آپ کتنی اچھی ہیں، ساری صفائی خود ہی کر دیتی ہیں۔ رضیہ بیگم نے تکیا اس کے سر پر مارا، اٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہے بیٹا، بری بات ہوتی ہے۔ انوشے نے آخرکار ہار مانتے کراہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ اچھا اٹھ رہی ہوں، پر چائے بنوا دیں پہلے؟ چائے بھی خود بناؤ گی اور کمرہ بھی خود صاف کرو گی؟
अब चलो जल्दी उठो, नेकी का वक्त है, किस्मत जागने का वक्त है, और ये लड़की हर वक्त सोती रहती है। वो गुस्से से कहते बाहर चली गई थी और अनुषे नींद से लड़ती हुई बिखरे बालों के साथ बादल नख्वास्ता बिस्तर से उठी गई। जानती थी अगर अब बेदार ना हुई तो सीधा झाड़ू लगेगी। कमरे में अब जिंदगी की हलचल दोबारा शुरू हो चुकी थी। तमाम लोगों का हुक्म था कि वो सुबह डाइनिंग पर मौजूद हो, लेकिन वो नवाबजादी उठती ही 12 बजे थी और उसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि वो दादा जान की लाडली थी और उनकी लाडली को अगर एक लफ्ज़ भी कह दिया जाए तो वो पूरा घर सर पर उठा लेते थे। धूप अपनी पूरी आबोताब के साथ आंगन पर छाई हुई थी। हर तरफ एक सुनहरी रोशनी का समा था। बावर्ची खाने में हल्की हल्की खुशबुओं ने अपना बसेरा कर रखा था। सालन में मसालों की भुनी हुई खुशबू, चावलों की उठती भाप और चूल्हे पर खनकने वाले बर्तनों की आवाज़ें एक घरेलू सी मानूस सी गर्मजोशी बिखेर रही थी। शाजिया बेगम हल्की नीली कमीज और सफ़ेद दुपट्टे में मलबूस चूल्हे के सामने झुकी बिरयानी की देगची में चम्मच चला रही थी। बराबर में रजिया बेगम सब्जी काट रही थी। उनके माथे पर हल्की सी शिकने और हाथों में रिवायती फुर्ती। दोनों औरतें बातें करते करते अपने काम में मशगूल थीं कि अचानक कमरे का सुकून एक शरारती सी आवाज़ से टूटा। अनुषा दरवाजे से उछलती कूदती कहकहा लगाती अंदर दाखिल हुई। बाल बिखरे हुए, आंखों में शरारत और चेहरे पर खिलखिलाती हुई हंसी। वो भागकर शाजिया बेगम के पास आई और पीछे से उनके गिर्द बाजुओं का हार डाल दिया। चच्ची, क्या बन रहा है? आज तो किचन से जन्नत की खुशबू आ रही है, वो झूमते हुए बोली। शाजिया बेगम हंस पड़ी। चम्मच देगची में छोड़कर अनुषे के हाथ पकड़े। आज मैं अपनी बेटी के लिए बिरयानी बना रही हूँ, खुश? अनुषे ने खुशी से हाथ हवा में उछाले। वाह चच्ची, आप जैसी चच्चियाँ हर किसी को नसीब कहाँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आप हैं, सच्ची मुच्ची। शाजिया बेगम ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर चुटकी भरी। हाय हाय, इतनी मिठास, लगता है आज कुछ चाहिए तुम्हें। अभी अनुषे कुछ मजीद शौकी से कहने ही वाली थी कि रजिया बेगम ने सब्जी काटते हुए सख्त लहजे में मुदाखलत की। बस शाजिया, तुम लोगों के इसी लाड ने इसको सर पर चढ़ा दिया है। 18 की हो गई है, अकल तो जैसे अभी घुटनों में है। वो रिवायती माँ की तरह हर चीज में टोकती थी। यहाँ तो सुकून था, लेकिन वो अगले घर के लिए डरती थी कि न जाने वहां कैसा सलूक किया जाएगा। अनुषा ने झट से चेहरा बिगाड़ कर कहा, अम्मी, आपको हर वक्त मेरे प्यार पर क्यों जलन होती है? आखिर को मैं हूं ही इतनी प्यारी, खानदान वालों की जान हूं मैं। रजिया बेगम ने आंखें निकालते हुए उंगली उठाई। जान हो या जान का अजाब, हमें तो सिर्फ तुम्हारी हरकतों से जान जाती है। जरा सी तमीज सीख लो। यह हंसी मजाक कब तक चलेगा? आखिर कब संजीदा होगी तुम? अनुषे, परेशान कर दिया है तुमने मुझे, वो हमेशा की तरह माथे पर बल डालकर बोली थी। अनुषे ने शरारत से आंखें घुमाकर कहा, अम्मी आप फिक्र ना करें, संजीदगी तो शादी के बाद ही आनी है ना। अभी तो मैं बच्ची हूं, नाजों से पली हूं। शाजिया बेगम ने हंसते हुए कहा, अरे रहने दो नजिया भाभी, बचपन ज्यादा दिन कहाँ रहता है, अभी चंद सालों में खुद सुधर जाएगी। रजिया बेगम ने गुस्से से चाकू मेज पर पटखा। चंद साल? ये तो चंद नस्लें ले लेगी सुधरने में। और तुम शाजिया, इसे और सर पर ना चढ़ाओ। अब फौरन निकलो यहाँ से, वरना बनियानी भी नसीब ना हो। अनुषे ने मुंह बसोरते हुए कहा, अम्मी आप तो मेरी दुश्मन है, चच्ची तो मेरी सच्ची मोहब्बत है। वो जानबूझकर उन्हें छेड़ती थी ताकि वो गुस्सा करें। मोहब्बत छोड़ो और दफा हो जाओ किचन से। अभी एक देगची भी तुमने उलट दी ना तो देखना। अनुषा हंसते हुए दुपट्टा लहराते चक्कर काटते बाहर की तरफ दौड़ी। जाते जाते आवाज लगाई, चच्ची मेरी प्लेट में बोटियां ज्यादा डालना, अम्मी को हसद हो तो होने देना। वो कहाँ बाज आने वाली थी। शाजिया बेगम ने कहकहा लगाया, जबकि रजिया बेगम ने बेबसी से माथे पर हाथ मार लिया। किचन एक पल के लिए फिर कहकहों से गूंज उठा और अनुषे अपनी दुनिया में मस्त बाहर आंगन की धूप में गायब हो गई थी।
वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दोपहर की धूप आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगी थी। गांव की कच्ची सड़क पर गर्द के हल्के बादल उड़ते जा रहे थे। कहीं दूर दूर दरख्तों की कतारें कतारें लगी थी और रास्ते के किनारे सरसों के खेत अपनी जर्दी बिखेर रहे थे। फिजा में हल्की सी मिट्टी और फसलों की खुशबू मिली हुई थी। अनुषे अपने ग्रुप की 2 सहेलियों के साथ बाग की तरफ हंसती मुस्कुराती जा रही थी। तीनों के हाथों में फूलों की टोकरियां थीं और आपस में कभी कह कहे और कभी सरगोशियां हो रही थी। अचानक पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न बजा। ऊंची आवाज ने जैसे गांव के सुस्त मंजर में एक शोर बर्पा कर दिया। अनुषे चौंकी, पलटकर देखा तो एक स्याह रंग की चमकती गाड़ी धूल उड़ाती उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके अंदर बैठा धूप का चश्मा लगाए अरहम खानजादा था। चेहरे पर एक फातिहाना सी मुस्कुराहट सजाए। अनुषे ने जानबूझकर कदम सुस्त कर दिए, अपनी जगह पर जमकर खड़ी हो गई। साथ वाली सहेली ने कोहनी मारते हुए कहा, चल अनुषे, रास्ता दे, तमाशा मत कर प्लीज, अब्बा को पता चला तो मसला होगा। अनुषे ने हंसकर कहा, तमाशा तो अब देखो। गाड़ी रुकी। अरहम ने चश्मा नीचे करके गुस्से से आंखों को सुकेड़ा। वो उसे जहर लगती थी। उसकी शरारतें और उसकी शोखियां, सब कुछ हमेशा कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती थी। वो गाड़ी के अंदर से सख्ती से बोला, रास्ता दो अनुषे। अनुषे ने होंठ चबाते हुए ऐसी अदा से गर्दन हिलाई जैसे सुन ही न रही हो। फिर निहायत आराम से नीचे झुकी, जमीन से एक पत्थर उठाया और एक लम्हे की ताखीर किए बगैर सीधा गाड़ी के सामने वाले शीशे पर दे मारा। ठक की आवाज के साथ शीशे पर एक लंबी दरार उभर आई। अरहम की रगें तन गई। गाड़ी का दरवाजा जोर से खोलकर वो बाहर निकलने ही वाला था कि अनुषे ने तेजी से अपनी सहेलियों का हाथ पकड़ा और कहका लगाते हुए बाग की तरफ दौड़ लगा दी। अरहम पीछे दांत पीसते हुए रह गया। वो मुट्ठियां भींचते बड़बड़ाया, एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा अनुषे। उसकी आवाज खासी बुलंद थी। वो पीछे मुड़कर बोली, तब तक अपनी गाड़ी के शीशे संभालो। हवा में उसके कहकहे गूंज रहे थे। सरसों के खेत झूम रहे थे और अरहम खानजादा की आंखों में गुस्से के शोले दहक रहे थे। सड़क पर मिट्टी का एक हल्का सा बादल उठा और मंजर को धुंधला कर गया, जैसे गांव की फिजा भी अनुषे की शोखी पर हंस रही हो। फिलहाल वो अपना सर झटक गया था। वो लड़की ऐसे ही उसका जब्त आजमाती थी। कहने को तो दुश्मन खानदान की बेटी थी, लेकिन बेवजह इतना उससे उलझती थी जिसकी कोई हद नहीं। कई बार दिल किया कि शिकायत कर दे, मगर वो चुप कर जाता था। ढलती दोपहर के साए डेरे पर गहरे होने लगे। वसी खुला सहन, किनारों पर नीम और पीपल के ऊंचे दरख्त और बीच में बनी हुई वो मखसूस जगह जहां अरहम खानजादा की चारपाई हमेशा बिछी रहती थी। कच्चे फर्श पर हल्की धूल उड़ती थी और हवा में धूप और मिट्टी की मिली जुली खुशबू रची हुई थी। अरहम खानजादा गाड़ी से उतरा तो उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा छाया हुआ था। कदम तेज और वजनी थे। सीधा अपनी मखसूस जगह पर आकर चारपाई पर धम से बैठ गया। उसका खास मुलाजिम जो सालों से उसके साथ था, पास खड़ा उसे देख रहा था। उसने कुछ पल इंतजार किया, फिर झिझकते हुए करीब आया। साहब खैरियत? आज तो तबीयत बड़ी गर्म लग रही है, कुछ हुआ है क्या? उसने हल्के लहजे में सवाल किया। अरहम ने सख्ती से मुट्ठियों को भेंचा, दांत पीसते हुए कहा, वही अनुषे, आज फिर हद से बढ़ गई। सड़क पर खड़ी होकर गाड़ी के शीशे पर पत्थर दे मारा। मेरी बर्दाश्त का ये लड़की इम्तिहान ले रही है। अगर लड़की ना होती तो 2 मिनट में दिमाग दुरुस्त कर देता। रहमान ने हैरत से आंखें फैलाई। अरे मौला, ये तो हद हो गई साहब। इजाजत दें तो अभी शाह साहब के घर शिकायत लेकर चलें। उनकी बेटी को तो कोई रोकने वाला होना चाहिए। आखिर खानदान की इज्जत का भी कोई पास होता है। अरहम ने तेजी से नफी में सर हिलाया। आंखों में अब भी गुस्से की चमक थी, मगर साथ कहीं हल्की सी नरमी भी छुपी हुई थी। नहीं रहमान, कोई ज़रूरत नहीं, छोटी है, नासमझ है। वो ज़रा तवक्कुफ लेकर बोला, जब बड़ी होगी तो खुद समझ जाएगी, अभी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। रहमान ने नासमझी से कहा, मगर साहब, आप तो ऐसे कामों को बर्दाश्त नहीं करते। ये अनुषे कौन सा खास मुकाम रखती है जो आप दरगुजर कर रहे हैं?
एक पल लगेगा दिमाग बिल्कुल ठिकाने लगा दिया जाएगा। अरहम ने थोड़ा सा रुख मोड़कर दूर आसमान को देखा, जहां सूरज पीले नारंगी रंग में डूबने को था। वो भारी आवाज में बोला, रहमान, कुछ लोग अपनी हरकतों से नहीं, अपनी मासूमियत से दिल में जगह बना लेते हैं। वो अगर आज नादानी में हंसते हुए भाग गई तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे लिए कोई दुश्मन है। दुश्मनी अकल से होती है, नादानी से नहीं। रहमान ने ताज्जुब से अपने साहब को देखा। इतने नरम अल्फाज, इतनी तहम्मुल मिजाजी। ये तो वो अरहम खानजादा नहीं था जो मामूली बात पर भी गरज उठता था। चंद लम्हे बाद अरहम ने लंबी सांस ली, मुट्ठियां ढीली की और करख्त लहजे में बोला, पर ये आखिरी बार है। अगर फिर कोई हरकत की तो उसका हिसाब अलग होगा। फिलहाल छोड़ दो। रहमान ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म साहब, जैसे आप चाहें। अरहम ने आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सर चारपाई के सिरहाने से टिकाया, जैसे अपने अंदर उठते तूफान को काबू में ला रहा हो। डेरे की फिजा में शाम का सकूत उतरने लगा था। कहीं कोई दूर कोयल उदास लहजे में कूकने लगी थी, क्योंकि जानती थी कुछ रोज बाद ही जो तहलका अरहम खानजादा की जिंदगी में होने वाला है, वो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। दूसरी जानिब बाग में दाखिल होते ही ठंडी ठंडी हवाओं ने अनुशे का इस्तकबाल किया। दरख्तों की घनी छांव, पत्ते जो हल्की हल्की हवा में सरसरा रहे थे, कहीं कहीं से कोयल की मध्यम कूक और जमीन पर गिरे हुए अमरूदों की खुशबू ने माहौल को मुअत्तर कर रखा था। अनुशी अपनी सहेलियों के साथ हंसती मुस्कुराती अंदर आई। दुपट्टे को पीछे संभालती नंगे पांव घास पर चलते हुए ऐसे झूम रही थी जैसे कोई तितली हो जो बाग की हर खुशबू को अपनी सांसों में भरना चाहती हो। लेकिन रिमशा, जो जरा संजीदा मिजाज लड़की थी, उसके पीछे पीछे आई और हल्के से बाजू पकड़कर रोकते हुए कहने लगी, अनुशे, खुदा का वास्ता है तुम बाज आ जाओ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? एक दिन तुम्हारी यही शरारतें तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएंगी। तुम हर बार अरहम खानजादा से उलझती हो। अगर कभी दादा साईं तक शिकायत पहुंची तो जानती हो क्या होगा? सारा गांव तमाशा देखेगा और तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वो सख्ती से डांटते हुए बोली थी। अनुशे कहकहा लगाते घूमकर रिमशा की तरफ पलटी। उसकी हंसी जैसे फिजा में झोंके की तरह बिखर गई। अरे रिमशा, ना पहले कभी शिकायत पहुंची ना अब पहुंचेगी। और वैसे भी दादा साईं को इतना वक्त कहाँ कि वो मेरी छोटी मोटी शरारतों पर ध्यान दे। वो तो अपनी ज़मीनों और महफिलों में मसरूफ़ रहते हैं। रिमशा ने नाक गुस्से से सुकेड़ा। अनुशे, मैं मजाक नहीं कर रही। अरहम खानजादा का ख़ानदान दुश्मनी में ज़रा रहम नहीं करता। उनका गुस्सा अगर भड़क उठा तो हम सब लपेट में आ जाएंगे। तुम्हें हर बात हंसी में उड़ाने की आदत है। एक दिन देखना तुम बहुत पछताओगी। तुम्हें अपनी हर गलती का एहसास होगा कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करती हो। सुनने में आया है खानजादा ख़ानदान अब सरदार की गद्दी पर बैठेगा। अगर अरहम खानजादा सरकार की गद्दी पर आ गया तब तुम क्या करोगी? कौन बचाएगा तुम्हें? बेवजह अगर उसने तुम्हें सज़ा दे दी तो मांगती रहना माफ़ी। चंद लम्हों के लिए उसकी बात सुनकर वो खामोश रही थी, मगर फिर शरारत से आंख मार कर बोली, बस यही तो मज़ा है ना। दुश्मन ख़ानदान को यूं ही तंग करने में जो लज्जत है वो किसी और चीज़ में कहाँ। और अरहम खानजादा, इतना संजीदा चेहरा जैसे दुनिया का बोझ उसकी पेशानी पर हो। थोड़ा तंग करूँगी तो शायद हंसना सीख ले। और रही सरदारी की बात, मेरे दादा सब ठीक कर सकते हैं। मैं उनकी लाडली पोती हूँ, कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। वो एक अदा से बोली थी। रिमशा ने तंग आकर हाथ कमर पर रखे। तुम्हारी अकल तो वाकई घुटनों में है। और ये जो तुम हंसने का सबक सिखाने निकली हो ना, कहीं खुद रोना ना पड़ जाए किसी दिन। अनुशे ने हंसते हुए झाड़ियों की तरफ इशारा किया। छोड़ो इन सब बातों को। आओ आज इतने अमरूद तोड़ते हैं कि शाम को दादा साईं भी हैरान हो जाएं। कहानियों में सुन रखा है कि जब बाग से सब्जियां या फल चोरी किए जाएं तो उनका अलग ही मज़ा होता है। हम तो जायज़ वारिस हैं, लेकिन आज थोड़ा चोर बनने में क्या हर्ज है। रिमशा ने बेबसी से सर पकड़ लिया। या अल्लाह, ये लड़की तो सच में आफत है। एक दिन ये हम सबको मुसीबत में उलझाएगी।
अनुशे ने झट से एक अमरूद तोड़ा, हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ाया। आफत नहीं, बहार हूं मैं। लो, पहले अमरूद का हक तुम्हारा। रिमशा ने हंसते हुए हाथ से अमरूद ले लिया। चलो बहार रानी, फिर जल्दी जल्दी तोड़ो, कहीं माली आ गया तो हमें भी दुश्मन खानदान की तरह मार खानी पड़ जाएगी। अनुशे ने शोखी से एक और अमरूद तोड़ा और नारा लगाया, मार खाने से नहीं, मारने से डरना चाहिए। आओ, आज बाग हमारा है, हंसी हमारी और खुशबू हमारी। बाग में उनके कह कहे बिखर गए, दरख्त झूमने लगे और हवा ने उनके बेफिक्र लम्हे अपने दामन में समेट लिए, क्योंकि हर शख्स जानता था ये बेफिक्र लड़की कितनी बड़ी मुसीबत में आने वाली है, कितनी बड़ी उलझन में फंसने वाली है। ये बात हकीकत है। ज्यादा हंसी उड़ाने वाले लोग एक दिन इतना रोते हैं कि अगले हर शख्स की आंखें नम करवा देते हैं। हवेली की लाडली, दोस्तों की जान, एक ऐसे शख्स के दिल की मलका बन चुकी थी जिससे कोई वाकिफ नहीं था। रात गहरी होती जा रही थी। शाह हवेली के बड़े लाउंज में रात का सन्नाटा कुछ गहरा हो चुका था, मगर अंदर फजा तनी हुई थी। भारी मखमली पर्दे खिड़कियों पर गिरे हुए थे और दीवारों पर लगे फानूसों की जर्द रोशनी माहौल को मजीद संजीदा बना रही थी। दरमियान में एक बड़ी शीशे की मेज थी, जिसके गिर्द शमशाद शाह अपनी मखसूस ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर बैठे थे। चेहरे पर वकार और आंखों में बरसों की सख्तियां झलक रही थी। उनके दाएं बाएं उनके दोनों बेटे और सामने कतार में पोते बैठे थे। सबकी नजरें नीची थी, सिवाय एक के। शाहनवाज शाह, दादा साईं का बड़ा पोता, तूफान की तरह उठ बैठा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, मुट्ठियां भेजी हुई थी और सांसें तेज। दादा साईं, ये खानजादों ने तो दिमाग खराब कर रखा है। शाहनवाज का लहजा आसमान को छू रहा था। जिस जमीन का हमने बयाना दे दिया है, उस पर अब भी ये कब्जा जमाना चाहते हैं। आज फिर रहीम खानजादा हमारे आदमियों से उलझ रहा था। मैंने साफ लफ्जों में अरहम खानजादा को कह दिया है, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो जान ले लूंगा उसकी। लाउंज में एक पल के लिए खामोशी छा गई, गोया सबकी सांसें रुक गईं। दादा साईं ने घूर कर शाहनवाज को देखा, छड़ी जमीन पर टिकाई और गरजदार आवाज में बोले, जमान संभाल कर बात करो शाहनवाज, खून गरम रखना कोई बहादुरी नहीं होती, अकल से काम लेना ही असल मर्दान की है। शाहनवाज गुस्से से खौलता रहा। दादा साईं, कब तक सब्र करें? ये खानजादे हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने वक्त पर हाथ ना उठाया तो कल हमारी जमीनें इनकी होंगी और हमारी इज्जत भी। दादा साईं ने गहरी सांस ली, सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और सख्ती से कहा, सुन ले शाहनवाज, हम शाह हैं। खाना जंगी हमारे खून को जेब नहीं देती। पूरे गांव में हमारी दुश्मनी का चर्चा है। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई खून रेजी हुई तो दुश्मन अपने भी उंगलियां उठाएंगे। समझदारी से, होश से मामला संभालना हमारी जीत होगी। शाहनवाज ने बेचैनी से पहलू बदला। बाकी बैठे हुए भी आहिस्ता आहिस्ता उसे नरमी से समझाने लगे। भाई, बात बढ़ाने से फायदा नहीं, नुकसान होगा। आरिफ ने दबी आवाज में कहा। हाँ शाहनवाज भाई, दादा साईं ठीक कहते हैं। हमें मामले को होशियारी से संभालना होगा, गुस्से से नहीं। अदनान ने भी लगी लपटी रखे बगैर कहा। शाहनवाज ने दांत पीसकर कुर्सी की पुश्त पर जोर से टेक लगाई, मगर उसके चेहरे पर तपिश अब भी मौजूद थी। समझ रहा हूं सब कुछ, लेकिन अगर इन खानजादों ने अगली बार कोई हरकत की तो सब्र कर नहीं सकूंगा। दादा साईं ने सख्त निगाहों से उसे देखा और बोला, अगर सब्र नहीं कर सकोगे तो शाह खून की तौहीन होगी। दुश्मनी में जल्दबाजी नहीं, हिकमत से दुश्मन को जेर करना ही असल जीत है। अभी वक्त हमारा है, अगर हमने अकल से काम लिया। लाउंज में एक बार फिर सकूत छा गया। बाहर सहन में हवा हल्के हल्के दरख्तों के पत्ते हिला रही थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात उस खामोश तूफान की गवाह बनने जा रही हो। शाहनवाज ने गुस्से को बमुश्किल जब्त करते सर झुकाया। दादा साईं के अल्फाज दिल पर नक्श हो चुके थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। दुश्मनी की आग शायद इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी।
ऊपरी मंजिल पर बना कमरा एक अलग ही दुनिया में गुम था। जर्द बल्ब की रोशनी में एक खामोश सी संजीदगी छाई हुई थी। बाहर रात की खामोशी में कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें मध्यम सुनाई दे रही थी। वो गहरे नीले रंग के पलंग पर आलती पालती मारे हाथ में एक पुरानी दास्तानी किताब लिए मुताले में डूबी हुई थी। किताब के जर्द सफ़हात और गहरी स्याही से कहानी की खुशबू उसके जहन में उतर रही थी। कमरे के एक कोने में रखा मोबाइल फ़ोन खामोशी से पड़ा था, जब अचानक फ़ोन की तेज़ घंटी कमरे की खामोशी को चीरती हुई गूंजने लगी। चौंक कर उसने किताब एक तरफ रखी और कदरे हैरानी से मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। स्क्रीन पर एक अजनबी नंबर जगमगा रहा था। माथे पर बल डाले वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर एक झिझक के साथ कॉल रिसीव कर ली। हेलो, उसने सवालिया अंदाज में कहा, लेकिन अगली तरफ खामोशी छाई रहे। हेलो, कौन है? बात करनी है तो करो, वरना मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, उसने दोबारा बेचैनी से कहा। आवाज़ में झुंझुलाहट शामिल होती जा रही थी। अचानक अगली तरफ से एक करख्त, सर्द और सख्त लहजा उभरा। अगर आइंदा तुम्हें बगैर दुपट्टे के बाहर घूमते देखा तो तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। वो शशतर रह गई, पलके झपकना भी भूल गई। कौन हो तुम? उसने बेयकीनी से पूछा, मगर दूसरी तरफ से वही सख्त लहजा गूंजा। जो कहा है उसे गांठ बांध लो, वरना तुम्हारी चमड़ी उधेड़ने में मुझे देर नहीं लगेगी। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वो तड़प कर बोली, तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? मेरे बाबा, दादा साईं, लाला ने आज तक कभी मुझ पर ऐसी पाबंदी नहीं लगाई, और तुम मुझे डरा रहे हो। कौन हो तुम? दूसरी तरफ से करख्त लहजा और भी सख्त हो गया। बकवास बंद करो, जितना कहा है उतना सुनो। दुपट्टा ओढ़ कर निकलो, वरना अपने अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं अभी अब्बू को बताती हूँ, देख लेना तुम्हारी खैर नहीं। वो गुस्से में चीखी, मगर दूसरी तरफ से एक जहरीली सर्द महरी से कहा गया, अपने बड़ों को बताना चाहती हो तो बता दो, मगर याद रखो इस बार सिर्फ वार्निंग है, अगली बार हाथ भी चलेगा। ये कहते ही कॉल कट गई। फ़ोन की स्क्रीन पर कॉल एंडेड के अल्फाज उभरे और कमरे में दोबारा सन्नाटा छा गया। वो दम बखुद मोबाइल को देखती रही। दिल तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सी घबराहट ने उसे घेर लिया था। जहन में सवालों का तूफान उठ चुका था। ये कौन था? क्यों? मुझे क्यों धमकी दी? वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगी, जैसे कमरे की दीवारें उसे जवाब देंगी। एक अनजान खौफ ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। किताब अब भी खुली पड़ी थी, मगर अब अल्फाज धुंधला गए थे और कमरे की फिजा में सिर्फ उस अनजान कॉल की बाज़गश्त रह गई थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ। सुबह की मध्यम रोशनी हवेली के वसी डाइनिंग हॉल में नीम तारीकी का तासुर दे रही थी। भारी पर्दे अभी खींचे नहीं गए थे। फानूस की जर्द रोशनी मेज पर बिखरी नाश्ते की अशिया पर पड़ रही थी, मगर आज फिजा में गैर मामूली खामोशी का बसेरा था। सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे, मगर किसी के हाथ चाय या खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। शमशाद शाह अपनी मखसूस सरबराही कुर्सी पर बैठे गहरी सोचों में डूबे थे। आंखों में एक अजीब सा तनाव था। उनके दोनों बेटे, नवासे और पोते दाएं बाएं बैठे थे, मगर सबकी नज़रें झुकी हुई थीं, जैसे किसी अनकही मुसीबत का अंदेशा दिलों में घर कर चुका हो। शाहनवाज की बातें सबको परेशान कर गई थी। शाहनवाज गुस्से का खासा तेज था। यही वजह थी कि हर शख्स परेशान था, कहीं वो उलझ ना पड़े। और कहते हैं ना, जब हर सोच एक जैसी हो जाए तो कुछ ना कुछ मुमकिन ज़रूर होता है। फिजा में अजीब बेचैनी थी। चंद लम्हे गुजरे थे जब अचानक सहन की तरफ से भागते हुए कदमों की आवाज़ गूंजी। एक मुलाजिम हाँफता कांपता हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। कपकपाती आवाज़ के साथ बुलंद आवाज़ में बोला, गुस्ताखी माफ़ साईं, लेकिन गज़ब हो गया। उसका लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था। माथे पर पसीना ही पसीना था। चेहरे से साफ झलक रहा था कोई बात काफ़ी ख़तरनाक है।
शमशाद शाह ने चौंक कर मुलाजिम की तरफ देखा। आंखों में सख्ती और परेशानी एक साथ झलकने लगी। वो करख्त लहजे में बोले, क्या हुआ है, साफ साफ बताओ। कहने को मुलाजमीन हवेली के अंदरूनी हिस्से में नहीं आ सकते थे, खासकर मुलाजिम मर्द, लेकिन जो हालात उन्हें नजर आ रहे थे, न जाने क्यों उनका दिल हौल रहा था कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मुलाजिम ने पसीने से शराबूर चेहरे के साथ हाँफते हुए कहा, साईं, शाहनवाज साहब ने रहीम खानजादा को कत्ल कर दिया, चौराहे पर सबके सामने मार डाला। पूरा मजमा इकट्ठा हो गया है। उन्होंने 2 गोलियां उनके सीने में मारी हैं और एक पाँव में। वो बहुत बुरी तरह जख्मी होकर नीचे गिर पड़े। उनके साथी जब उन्हें अस्पताल लेकर जाने लगे तो उन्होंने ये भी नहीं करने दिया। उसी पल 2 मजीद गोलियां उन्हें मारी और वहां से निकल गए। ये अल्फाज नहीं, गोया पिघला हुआ सीसा था जो हवेली के हर फर्द के कानों में उंडेला गया। जिस बात का डर था वो डर अब हकीकत का रूप धार कर सामने खड़ा हो चुका था। हवेली के अंदर गोया जलजला आ गया था। सब अपनी जगह चौंक कर सीधे हो गए। शमशाद शाह झटके से अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उनके चेहरे पर हैरत, गुस्सा और बेबसी का मलगूबा छा गया। उन्होंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और धारते हुए बोले, या अल्लाह, मैंने कितनी बार समझाया था उस बेवकूफ़ को, गुस्से से कुछ नहीं होता। उनके लहजे में बेपनाह मायूसी और तैश था। उनके बेटे, नवासे और पोते सब सहमे बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोलें। आखिर को कारनामा ही इतना खतरनाक किया गया था। किसी मामूली इंसान का कत्ल नहीं हुआ था, खानजादा खानदान के छोटे बेटे का कत्ल हुआ था, आने वाले वक्त के सरदार के भाई का। यह कोई मामूली बात नहीं थी। तमाम लोगों के चेहरों की हवाइयां उड़ गई थी। अब क्या होगा दादा साईं? आरिफ ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसका दम भी निकल रहा था। शाहनवाज, उसका तो भाई था, टेंशन होना लाजिम थी। शमशाद शाह ने आंखें बंद करके एक लम्हे को गहरी सांस ली, फिर सख्त लहजे में बोले, अब खून बह चुका है। अब बात सिर्फ दुश्मनी की नहीं, कानून की भी होगी। खानजादे चुप नहीं बैठेंगे। जहां तक मुझे लगता है वो तावान पर भी नहीं मानेंगे। बस दुआ करो कि तावान पर बात टल जाए, नहीं तो शाहनवाज शाह को अरहम खानजादा के कहर से कोई नहीं बचा सकता। मैं कितना ही हाथ पांव मार लूं, मामला अब हमारी हुदूद से निकल गया है। कत्ल हुआ है, खून बहा है, ये कोई छोटी बात नहीं। अदनान ने दबे दबे खौफ से कहा, अगर खानजादे पलट कर वार करें तो? एक और खदशा भी लाहक हुआ था। आखिर को वो भी शाह थे। हर चीज के बारे में सोचना उन पर भी फर्ज था। शमशाद शाह ने सख्त निगाहों से उसे देखा। तो जो तकदीर में लिखा है वो होगा, लेकिन ये मुसीबत हम खुद अपने सर लेकर आए हैं। अब पता नहीं क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हवेली की फिजा मजीद बोझल हो गई थी। मुलाजिम अब भी दरवाजे के पास सहमा खड़ा था। शमशाद शाह ने हाथ उठाकर उसे जाने का इशारा किया। वो सर झुकाए तेजी से निकल गया। शमशाद शाह ने गहरी दुख भरी नजर सब पर डाली। सब तैयार रहो, अब गांव में हमारी इज्जत, हमारी ज़मीनें और हमारी जानें सब खतरे में हैं। एक गलती ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। यकीनन पंचायत से पैगाम आने वाला है। उनका लहजा गरजदार था, मगर उसमें छुपी बेबसी ने पूरे हाल को सन्नाटे में डुबो दिया। हवेली के मकीनों के दिलों पर खौफ की एक मुहीब लहर दौड़ गई थी। आज जो तूफान उठा था वो महज एक शुरुआत थी और इख्तिताम अरहम खानजादा के हाथों ही होना था। ये बात हर शय को मालूम थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन गुजर गए थे। हर तरफ सन्नाटे का बसेरा था और यही खामोशी शमशाद शाह का खून निचोड़ रही थी। उन्होंने घर की हर बेटी पर पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, खासकर अनूशे पर। वो उनके दिल का टुकड़ा थी। उसको महज वो अपनी पोती नहीं बेटी कहते थे। हमेशा अपने सीने से लगाए रखते थे। उसकी तरफ से उन्हें ज़्यादा फिक्र यही वजह थी कि उन्होंने उसे बिल्कुल मंजर से गायब कर दिया था। बहुत से ख्यालात उनके जहन में आ रहे थे। यही वजह थी क्योंकि किसी भी किस्म का वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे।
2 दिन बाद आज शाम के वक्त पंचायत का पैगाम आया कि कल दोपहर में पंचायत लगाई जाएगी और शाह खानदान की तमाम मर्दों को उसमें शामिल होना है, खासकर शाहनवाज शाह को। ये अल्फाज नहीं गोया पिघला हुआ सीसा था। जिस बात से शमशाद शाह बचना चाह रहे थे वो बात उनके सामने आ चुकी थी। रात भर हवेली का हर शख्स परेशान रहा। खुशियों भरी हवेली में अचानक मातम जैसा सन्नाटा छा गया था। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। पंचायत का मैदान आज गैर मामूली संजीदगी और तनाव की तस्वीर बना हुआ था। बड़े बरगद के दरख्त के नीचे जमीन पर बड़ी बड़ी दरियों का फर्श बिछाया गया था। एक तरफ खानजादा खानदान के रोबदार मर्द सफ़ेद लिबासों और काली वास्कटों में मलबूस गुस्से से तनावज़दा चेहरे लिए बैठे थे। उनके चेहरों पर दुख और इंतकाम की परछाइयाँ साफ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ शाह खानदान के मर्द सर झुकाए संजीदगी और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात के साथ मौजूद थे। दरमियान में चंद मुअज़्ज़िज़ीन और गांव के बड़े बैठे थे जिनके चेहरे फिक्र और परेशानी से भरे हुए थे। शमशाद शाह अपनी मखसूस वकार वाली नशिस्त पर बैठे निगाहें झुकाए गहरी सांसें ले रहे थे, जबकि उनका बड़ा पोता शाहनवाज शाह, जिसकी नादानी ने यह तूफान उठाया था, खामोशी से सर झुकाए दरी पर बैठा था। गांव के बड़े सरदार साहब दरमियान में मौजूद थे। उनके चेहरे पर एक संजीदा सख्ती तारी थी। हवा में एक गैर मरई बोझ लटक रहा था। जब जुल्फ़िकार खानज़ादा ने उठकर तनी हुई आवाज़ में कहा, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बेटे का खून बहाया गया है। ये खून इतना सस्ता नहीं कि माफ़ी तलाफ़ी से बात ख़त्म कर दी जाए। मैं खून का बदला खून से लूँगा। उनकी आवाज़ में भारी गरज थी। हर लफ्ज़ में कर्ब और गुस्सा चमक रहा था। जिस तरह मेरा बेटा सरेआम चौराहे पर मारा गया, इसी तरह शाह खानदान का बेटा भी चौराहे पर मरेगा। उनका हाथ गुस्से में कांप रहा था और उनके इर्द गिर्द बैठे खानजादा खानदान के मर्दों ने ताईद में सर हिलाए। उनका लख्ते जिगर मरा था। ऐसे कैसे वो माफ़ी दे देते? शमशाद शाह धीरे से मगर ज़ब्त शुदा गुस्से के साथ बोले, जुल्फ़िकार, मामलात इस तरह नहीं निपटाए जाते। खून के बदले खून की बात करके तुम गांव को आग में झोंक रहे हो। उनका लहजा सख्त मगर संभला हुआ था। ऐसे कैसे वो अपने पोते को मरने के लिए दे देते? उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी इन बूढ़ी आंखों से ऐसा मंजर देखते। ऐसा महज सोच कर ही उनका दिल कांप उठा था। जुल्फ़िकार खानज़ादा ने पलटकर तेज़ लहजे में जवाब दिया, जब तुम्हारे ख़ानदान ने पहल की तो अब अंजाम भी भुगतना होगा शमशाद। हमें अपने बेटे का खून याद है। वो तमाम लिहाज मुरब्बत भूल बैठे थे। कई सालों से दोनों ख़ानदानों में दुश्मनी थी, लेकिन हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। बेवजह शाहनवाज शाह ने दुश्मनी को चिंगारी दी थी और अब सब कुछ तबाह होने के दर पर आ गया था। दादा साई ने उसको खूब सुनाई थी। उनका बस नहीं चल रहा था वो इसका कत्ल कर दें, लेकिन फ़िलहाल वो बेहद बेबस थे। वो उनकी औलाद की औलाद थी। भला वो ऐसे कैसे उसे मार देते? शमशाद शाह ने हाथ उठाया जैसे मज़ीद कुछ कहना चाहते हों, मगर उसी लम्हे सरदार साहब ने ऊंची रोबदार आवाज़ में दोनों जानिब इशारा करते हुए कहा, बस, खामोश। ये पंचायत है, मैदान जंग नहीं। यहाँ फैसले जज्बात से नहीं, अकल और उसूलों से तय किए जाते हैं। उनकी आवाज़ में ऐसी सख्ती थी कि दोनों तरफ के मर्द साकित हो गए। शमशाद शाह ने दबे लफ्ज़ों में कुछ कहना चाहा, मगर सरदार साहब की तेज़ निगाह ने उन्हें रोक दिया। सरदार साहब ने अपनी जगह से ज़रा आगे झुकते हुए कहा, हम सब यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं। ना खून बहाना हमारा मकसद है, ना दुश्मनी को हवा देना। फैसला हम करेंगे, कानून, रिवायत और गांव के वकार को सामने रखकर। कोई एक भी अपनी जगह से ना उठे, कोई आवाज़ ना बुलंद हो, वरना अंजाम सबके लिए बुरा होगा। वो साहब गोई से बोले थे। पंचायत के मैदान में सन्नाटा छा गया। दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर से आती हवा की हल्की सी सिसकी सुनाई देने लगी। सब मर्द सर झुकाए बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सरदार साहब की बात के बाद एक लफ्ज़ बोले। अब सारी नज़रें सरदार साहब पर जम गई, जो अब गांव के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे थे। पंचायत का वक्त था,
लेकिन हवाओं में इंतकाम की बू अब भी हल्की हल्की मौजूद थी। हवा जैसे रुक सी गई थी, दरख्तों के पत्ते साकित थे और हर चेहरे पर संजीदगी और बेचैनी के आसार झलक रहे थे। सरदार साहब ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर ज़रा सीधे होकर बैठे। उनके निगाहों में तहम्मुल और फरासत की एक अजीब रोशनी थी। उन्होंने अपने भारी लहजे में कहा, मेरी राय यह है कि मामला तावान देकर ख़त्म कर दिया जाए। खून खराबा किसी मसले का हल नहीं होता। ज़मीन का झगड़ा हो या खून का, दोनों का अंजाम तबाही है। उनके अल्फाज अभी फिजा में गूंज रहे थे कि यकायक अरहम खानज़ादा अपनी जगह से उठा। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे और चेहरा सख्ती से तनाव ज़दा हो रहा था। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, नहीं सरदार साहब, मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं था कि चंद पैसों के एवज़ माफ़ कर दिया जाए। मैं किसी कीमत पर माफ़ी नहीं दूंगा और ना ही तावान लूँगा। सारी पंचायत जैसे एक लम्हे के लिए दुम साध गई। अरहम खानज़ादा की आवाज़ में ऐसी दहशत थी कि तमाम लोग खामोश हो गए। चंद लम्हों बाद सरदार साहब बोले, आप गलती कर रहे हैं, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, समझने की कोशिश करें। उनकी बात सुनकर वो फिर संजीदगी से बोला, अगर खून का बदला खून नहीं लेना तो फिर मैं शाह ख़ानदान की सबसे छोटी बेटी अनूशे शाह को मांगता हूँ। निकाह मैं करूँगा, अभी के अभी, तभी ये खून माफ़ होगा। उसके अल्फाज पत्थर की तरह पंचायत में गूंजे। लम्हे भर को मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर अचानक शाह ख़ानदान के तमाम मर्द जलाल में अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो रहे थे। शमशाद शाह का चेहरा गुस्से की शिद्दत से थरथरा रहा था, मगर खामोशी से जब्त किए खड़े थे। जबकि शाहनवाज साहब का जब्त मुकम्मल टूट चुका था। वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए धाड़ा, बकवास बंद करो अरहम खानज़ादा। अगर मेरी बहन का नाम भी ज़बान पर लाया तो याद रखो, जिस तरह तुम्हारे भाई को चौराहे पर मारा था, तुम्हें भी वहीं गिरा दूंगा। शाहनवाज की धार सुनते ही खानज़ादा ख़ानदान के कई मर्द फौरन अपनी कमरबंद से बंदूकें निकालकर हाथों में थाम चुके थे। हर तरफ हथियारों की चमक और अंगारों जैसी नजरें थीं। पल भर में फिजा बारूद की बू से बोझल हो गई। एक चिंगारी काफ़ी थी कि मैदान खून से भर गए, मगर उसी लम्हे सरदार साहब अपनी जगह से बुलंद होकर 2 कदम आगे बढ़े और दोनों जानिब हाथ उठा दिए। उनकी आवाज़, जो बरसों से गांव में इंसाफ की अलामत थी, गरज कर फिजा में गूंजी, रुक जाओ सब, किसी ने भी बंदूक चलाई तो सबसे पहले मुझसे गुजरना होगा। उनके अल्फाज में ऐसी काट और दबदबा था कि दोनों ख़ानदानों के मर्द साकित होकर रह गए। सरदार साहब ने सांस भरते सख्त लहजे में मजीद कहा, क्या हो गया है तुम सबको? कुछ होश करो। मसला हल करने बैठे हो या जंग छेड़ने? अगर जज्बात में बहे तो तबाही मुकद्दर बनेगी। अब जो फैसला होगा वो अकल और उसूल से होगा, ना कि जिद और गुस्से से। फिजा अब भी तनाव से बोझल थी, मगर सरदार साहब की धाड़ ने एक लम्हे को हर किसी के कदम रोक दिए। दोनों ख़ानदानों के मर्द एक दूसरे को खूनख्वार नज़रों से घूरते अपनी जगह पर रुक गए, मगर हर चेहरे से साफ लग रहा था कि आग अभी अंदर ही अंदर दहक रही है, जो ज़रा सी चिंगारी पर भड़क उठेगी। फैसला अब सरदार साहब के हाथ में था और गांव की किस्मत भी। पंचायत का मंजर अजीब सा हो गया। हर चेहरा तनाव से अकड़ा हुआ था, हर सांस जैसे थम गई थी। सरदार साहब अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे, दोनों हाथों को असा पर जमा कर एक गहरी नज़र दोनों ख़ानदानों पर डाली। उनकी आंखों में वही पुरानी सख्ती और तदब्बुर की झलक थी जिसने बरसों इस गांव को संभाला था। चंद लम्हे वो यूं ही खामोश बैठे रहे, जिससे पंचायत की फिजा को तोल रहे हों। फिर उन्होंने भारी आवाज़ में फैसला सुनाना शुरू किया। हमने सब कुछ सुना और देखा। पहले खानज़ादा ख़ानदान के जवान रहीम को चौराहे पर मारा गया, और अब पूरी पंचायत के बीच शाहनवाज की ज़बान से अरहम खानज़ादा को धमकियां सुनने को मिली। सरदार साहब की निगाहें सीधी शाहनवाज पर मरकूज हो गई, जो अब भी गुस्से से दांत पीस रहा था। ये महज एक कत्ल नहीं, ये दुश्मनी की आग भड़काने की कोशिश है। अब भी अगर हमने होश से काम ना लिया तो ये आग पूरे गांव को जला कर राख कर देगी। उन्होंने एक लम्हे को तवक्कुफ किया, जैसे हर लफ्ज़ की गहराई सब पर नक्श करना चाहते हों। फिर सख्ती से बोले, हम ऐलान करते हैं कि वन्नी ली जाएगी। यही वाहिद रास्ता है दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का।
لہٰذا ہمارا فیصلہ ہے کہ ابھی کے ابھی شاہ خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی انوشے شاہ کا نکاح ارحم خانزادہ سے ہوگا۔ پنچایت میں جیسے دھماکہ ہو گیا، ہر طرف سناٹا چھا گیا، کسی کے لب تک نہ ہلے۔ خانزادہ خاندان کے مرد بیک وقت سینہ چوڑا کر کے بیٹھ گئے، جیسے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا ہو۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک تھی۔ شاہ خاندان کی جانب خاموشی گہری ہو گئی تھی۔ شمشاد شاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، جبکہ شاہ نواز کا غصہ عروج پر تھا، مگر وہ بھی سردار صاحب کے جلالی لہجے کے سامنے کچھ بول نہ پایا۔ سردار صاحب نے مزید کہا، یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے۔ جو اس فیصلے کو تسلیم کرے گا وہ گاؤں میں عزت سے جیے گا، اور جو انکار کرے گا اسے گاؤں بدر کر دیا جائے گا۔ اس کی ساری زمینیں، جاگیریں، پراپرٹی ضبط کر لی جائے گی۔ نہ کوئی رحم ہوگا، نہ کوئی رعایت۔ ان کے الفاظ گونجتے ہوئے پنچایت کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹنے لگے۔ شاہ خاندان کے مرد ایک دوسرے کو بے یقینی اور لاچاری سے دیکھنے لگے۔ ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ارحم خانزادہ نے سردار صاحب کی طرف جھک کر سر ہلایا۔ ان کے چہرے پر سختی بھی تھی اور ایک انوکھی سا اطمینان بھی، جیسے اپنے بھائی کا انتقام لینے کا سفر مکمل ہو رہا ہو۔ پنچایت میں موجود باقی لوگوں نے بھی سر جھکا کر سردار صاحب کے حکم کی تعمیل کا اعلان کیا۔ فضا اب بھی بوجھل تھی، مگر اب یہ بوجھ فیصلے کا بوجھ تھا، دشمنی کے انجام کا۔ کچھ لمحوں بعد سردار صاحب نے عصا زمین پر مار کر بآواز بلند کہا، فیصلہ ہو چکا، اب تیاری کرو نکاح کی۔ اور اس حکم کے ساتھ ہی گاؤں کی تقدیر ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ وقت گزرا اور تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ گاؤں کی قدیمی پنچایت کی عمارت میں ایک سنجیدہ سکوت چھایا ہوا تھا۔ شام کے وقت ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر اندر جیسے وقت تھم گیا تھا۔ مرد حضرات ایک جانب قطار میں بیٹھے تھے اور عورتیں پردے کے پیچھے۔ انوشے شاہ کو چپ چاپ پنچایت میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ اپنے بابا کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کی اماں اس کے دوسری جانب موجود تھی، مگر انوشے جیسے کسی اور دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ نہ آنکھوں میں آنسو تھے، نہ لبوں پر کوئی ہنسی۔ وہ بالکل بے حس بیٹھی تھی، جیسے اپنے اندر کہیں چھپ چکی ہو۔ پورا ہال اس کی خاموشی سے اور زیادہ خاموش لگنے لگا تھا۔ قاضی صاحب نے اپنی اینک درست کرتے نکاح نامہ کھولا، ایک نظر حاضرین پر ڈالی، پھر نرمی سے بولے، بیٹی انوشے شاہ بنت کاشف شاہ، کیا تمہیں ارحم خانزادہ بن ذوالفقار خانزادہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ پنچایت میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی، مگر انوشے خاموش رہی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر زبان جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ قاضی صاحب نے پھر سوال دہرایا، بیٹی صاف اور واضح جواب چاہیے، قبول ہے یا نہیں؟ انوشے کی نظریں زمین پر جمی تھی، آنکھیں بھیگنے کو تھیں، مگر ضبط کی ایک عجیب سی دیوار کھڑی تھی۔ سردار صاحب کی گرجدار آواز فضا میں گونجی، جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ خاموشی بغاوت سمجھی جائے گی۔ سارے ہال میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ انوشے نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، دل کو مضبوط کیا اور کپکپاتی آواز میں بمشکل کہا، قبول ہے۔ ایک خاموش سی لہر پنچایت میں دوڑ گئی۔ قاضی صاحب نے ہلکی سی سانس خارج کی اور پھر نگاہ ارحم خانزادہ پر ڈالی، جو قدرے فاصلے پر اپنی مخصوص شان اور سخت تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا۔ قاضی صاحب نے سوال دہرایا، ارحم خانزادہ بن ذوالفقار خانزادہ، کیا آپ کو انوشے شاہ بنت کاشف شاہ کا نکاح قبول ہے؟ ارحم کے لبوں پر ایک سخت مگر پر اعتماد مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھتے بلند، صاف اور مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی ہچکچاہٹ تھی، نہ تردد، جیسے وہ مدتوں سے اس لمحے کا منتظر تھا۔ اس کے جواب کے ساتھ ہی پنچایت کے کچھ بڑے بوڑھوں نے زیر لب دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ قاضی صاحب نے باضابطہ نکاح مکمل ہونے کے لیے ضروری کلمات کہے اور دونوں خاندانوں کے دو گواہ آگے بڑھ کر دستخط کرنے لگے۔ انوشی اپنی جگہ بیٹھی رہی، ساکت، بے جان سی۔ اماں نے اس کے ہاتھ پر تسلی کے لیے ہاتھ رکھا، مگر وہ بغیر کسی رد عمل کے بس سامنے خلا میں تکتی رہی۔ پنچایت کے کونے میں بیٹھے سردار صاحب نے عصا زمین پر مار کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور گھمبیر لہجے میں کہا،
अब ये रिश्ता तय पा चुका है। अब अगर किसी ने दुश्मनी की आग भड़काई तो याद रखे, ये आग सबको जला डालेगी। पूरी पंचायत में एक दबी दबी खामोशी थी, जैसे सभी इस फैसले के भारी पन्नों को समझने में मसरूफ हो। यूं अनूशे शाह और अरहम खानजादा का निकाह मुकम्मल हुआ। दुश्मनी के बोझ तले दबी एक मजबूरी का रिश्ता। अनूशे काफी हैरान थी, ये हुआ क्या है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खौफ के मारे उसकी जान निकल रही थी। उसी पल रुखसती का ऐलान हो गया। शाह हवेली की लाडली बेटी बनी हो गई थी। हर आंख नम थी। शमशाद शाह अपनी अना, जिद सब भुलाए ज़ारो कतार रो रहे थे। जिंदगी में पहली बार वो सब हारता हुआ महसूस कर रहे थे। पोते के लिए उन्होंने पोती को जुल्म की भेंट चढ़ा दिया था और ये चीज़ उन्हें तकलीफ दे रही थी। शाम के साए खानजादा हवेली पर गहरे हो चुके थे। अंधेरों और मध्यम रोशनियों के बीच अरहम खानजादा के कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छाया था। अनूशे लकड़ी के एक पलंग पर किनारे पर सिमटी बैठी थी, हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए, आंखें झुकी हुई, दिल बेतरतीब धड़क रहा था। बाहर से आती हवा की सरसराहट और दूर कहीं मुलाजमों की मध्यम बातें माहौल का हिस्सा थी। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। शाइस्ता खानजादा, जिनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई। बेगैरत लड़की वो गुर्राई थी और अगले ही लम्हे अनूशे के बालों पर झपट पड़ी। अनूशे एकदम चीख उठी, हाथों से खुद को बचाने की कोशिश की, मगर शाइस्ता बेगम का गुस्सा पहाड़ बन चुका था। बाल नोचते, थप्पड़ मारने की कोशिश करते वो चिल्ला रही थी, मेरा बेटा मार दिया तुम लोगों ने, बदजात लड़की, तुम्हारा खानदान जालिम है। अनूशे का नाजुक वजूद उनके सामने बेबस था। आंखों में आंसू तैरने लगे थे, मगर वो चीख नहीं रही थी, बस अपने चेहरे को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऐन उसी लम्हे दरवाज़ा एक झटके से दोबारा खुला। अरहम खानजादा अंदर आया। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। अम्मा! वो धाड़ा और तेजी से आगे बढ़कर शाइस्ता बेगम का हाथ पकड़ लिया। बस करें, हाथ भी नहीं लगाएंगी आप इसे। शाइस्ता बेगम हाँफते हुए पीछे हटी, मगर उनकी आंखों में गुस्सा बदस्तूर भड़क रहा था। वो चीखी, तू अपने भाई के खून का बदला भी नहीं लेगा? ये लड़की दुश्मन खानदान की है। अरहम ने सख्ती से अपनी माँ को देखा। उसकी गिरफ्त में जब्त का तूफान था। माँ, इसने नहीं मारा, यहाँ कोई हाथ नहीं उठेगा, आप जाए यहाँ से, मैं खुद संभाल लूंगा। वो जब्त की इंतहा से बोला था। शाइस्ता बेगम ने हैरान निगाहों से अपने बेटे को देखा, फिर अनूशे को घूरते हुए पलटी और गुस्से से कदमों की चाप छोड़ती कमरे से निकल गई। आखिर कर भी क्या सकती थी? अंदर अब सिर्फ खामोशी बची थी। अनूशी अब भी सिमटी बैठी थी, सांसें बेतरतीब थी, पलकों पर ठहरे आंसू लरस रहे थे। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से सर उठाया और अरहम को देखा, जो दीवार के पास खड़ा गहरी सांसें ले रहा था, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। धीमी मगर कपकपाती हुई आवाज में उसने सवाल किया, ये क्या मामला है? वो रुकी, होंठों पर जबान फेरी, फिर बमुश्किल बोली, आपको तो चाहिए था कि आप अपनी वालदा के साथ मिलकर मुझ पर जुल्म करते, आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? वो बेयकीन लहजे में बोली थी। चुप रहना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। अरहम की निगाह उस पर जा ठहरी। अब वो मुकम्मल खामोश था। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। हवा में हल्की हल्की ठंडक घुली थी। अनूशे का दिल अब भी धड़क रहा था, खौफ और उलझन के दरमियान घिरा हुआ। वो नजरें झुकाई बैठी थी जब अरहम ने 2 कदम आगे बढ़कर बहुत नरमी से उसे मुखातिब किया, मैं क्यों तुम पर हाथ उठाऊं या किसी और को उठाने दूं? उसकी आवाज में ऐसा सकून था कि अनूशे ने चौंक कर सर उठाया। बीवी हो तुम मेरी। वो थोड़ा और करीब आया। निकाह किया है सिर्फ इसलिए कि खानदान की दुश्मनी को ख़त्म कर सकूं, खून खराबा ना हो। मैं ये चाहता था कि जो आग बरसों से हमारे बीच सुलग रही है वो मजीद ना भड़के। अनूशे की पलकें फड़फड़ाईं, लब हल्के हल्के कांपे, मगर वो कुछ ना बोल सकी। अरहम ने उसकी नज़रों में गुम होकर नरमी से कहा, रही बात शाहनवाज की तो मैं उसे कानून के हवाले कर चुका हूँ। वो कानून के मुताबिक अपने जुर्म की सज़ा भुगतेगा। तुम्हारा इन सब में कोई कसूर नहीं था।
اس کے انداز میں ایسا یقین تھا کہ انوشے کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ تمہیں کوئی ہاتھ لگائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ ارحم کی آواز میں اب ایک عہد تھا، ایک تحفظ کا وعدہ۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میری محبت ہو۔ انوشے ساکت بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سانسیں تھم گئی، لبوں پر جیسے الفاظ مٹ گئے ہوں۔ تب ارحم نے مسکراتے دھیمے لہجے میں راز کھولا۔ میں تمہیں بہت پہلے سے چاہتا ہوں، تب سے جب تم چھوٹی سی گڑیا کی طرح ہوا کرتی تھی، ہر وقت ہنستی کھیلتی، اور وہ انجان کالز جو تمہیں ڈرایا کرتی تھی وہ بھی میں ہی کرتا تھا۔ بس یہ بہانہ تھا تمہیں خود تک متوجہ کرنے کا۔ انوشے کی آنکھوں میں حیرت، شکوہ اور خوشی کے رنگ ایک ساتھ بکھر گئے۔ لب کپکپائے مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی ارحم نے دھیرے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انوشے ایک لمحے کے لیے تو سون سی ہو گئی، پھر جیسے برسوں کی تھکی ہوئی روح کو سکون مل گیا ہو، وہ دھیرے سے اس کے مضبوط بازوؤں کا سہارا لینے لگی۔ باہر رات کے سناٹے میں تیز ہوا نے بانسری کی سی دھن چھیڑ دی تھی۔ ارحم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سرگوشی کی۔ اب تم اکیلی نہیں ہو انوشے، تمہاری ہر خوشی، ہر آنسو کا ذمہ دار میں ہوں، تمہارا ہر درد میرا ہے۔ انوشے نے بھیگی پلکوں سے سر ہلایا۔ یہ محبت تھی جو دشمنی کی راکھ سے بھی پھوٹ نکلی تھی۔ یہ رشتہ نفرت کی بنیاد پر نہیں، تحفظ، محبت اور اعتبار پر استوار ہوا تھا۔ حویلی کی پرانی دیواریں جو مدتوں سے دشمنی کی گواہ تھی، آج شاید پہلی بار محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ ایک سبق سب کے لیے چھوٹ گیا تھا کہ نفرت جتنا چاہے زور پکڑ لے، محبت آخرکار دلوں کو جوڑ ہی لیتی ہے۔ اور اسی شام ایک نئی صبح کی پہلی کرن ارحم اور انوشے کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔